Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of for grade 7, third edition, New Oxford Modern English. Open the page number 24. Poem. Which name? No. In today's video, you will find the full exercise of poem which I have already solved. First part of this exercise is A. Understanding the poem. There are many questions which I have solved one by one. Turn the next page. The next part is also working with words. There are questions in it and the work that had to be done in the book. I have already completed the book. The next part is C. इसमें pronouns हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी. Okay. Two type के question है which I have already solved. Next part is listening and speaking. A question from it has also been solved. At the end there is composition. All the questions up to that point have been answered and will be shared with you. So make sure to watch the full video. Let's move to first question. First question is answer the following question. Part A. In what way is the title of the poem a good one? इसके आंसर में आप लिखें The title November is a good one because it reflects the dull, dark and lifeless mood described in the poem. इस पोएम का नेम है नो यानी कि नवंबर. ये एक अच्छा टाइटल है बिकॉज क्योंकि ये बेरंग, अंधेरे और बेजान माहौल की अक्कासी करता है. द ऑर्डर पैटर्न ऑफ रैम्स एट द एंड ऑफ द लाइंस ऑफ अ पोएम. बाकी क्वेश्चन आप बुक से मुकम्मल करें. आवाज़ों की तरतीब में रैम स्कीम कहाँ आता है और क्या नज़म में कोई रैम स्कीम है? अगर है तो उसकी शनाख्त करें. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम मैनी लाइन्स एंड इन वर्ड दैट डू नॉट रैम लाइक. इस नज़म में कई सारे ऐसे जुमले भी हैं जिसके एंड वर्ड्स में कोई डैम स्कीम मौजूद नहीं है, जैसे कि नो सन नो मून. ये मैंने आपको एग्जांपल दी है. तो एग्जांपल है नो सन नो मून नो मून नो नून, नो डॉन नो डस्ट नो प्रॉपर time of day. However, in the second half, there are some rhyming lines like no locomotion, no inkling of the way, no notion, no mail, no post, no news from any foreign coast. Yes, there is rhyme scheme in the poem November by Thomas Hood, but it is irregular. शॉर्ट आंसर अगर आप देना चाहें तो ये वाला लिखें, और अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं और एग्जाम्पल समेत देना चाहते हैं तो फिर आपने ये वाला आंसर लिखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन व्हिच वर्ड्स इन द पोएम टेल अस अबाउट द फॉलोइंग? टाइम ऑफ डे, रोड्स, मोशन और इंट्रैक्शन, वेदर कंडीशन, जियोग्राफिकल फीचर, और नेक्स्ट है लिविंग क्रिएचर एंड प्लांट्स. टाइम ऑफ डे में लिखें मॉर्न, नून, डॉन, डस्ट. टाइम ऑफ डे है ये. अब आगे है रोड्स, रोड, street, the other side the way, row. Next word है motion or interaction, traveling, locomotion, linking of the way, notion, no go, recognition, knowing. Fourth है weather condition और geographical features में आपने लिखना है sun, moon, sky, earth view, distance, looking, blue, shade and shine. लिविंग क्रिएचर्स एंड प्लांट्स में लिखना है बटरफ्लाइज, bees, fruits, flowers, leaves, birds. These questions are more challenging. Discuss them first. How would you describe the general picture painted by the poet? Is it a cheerful one? The general picture painted by the poet is dark, dull, and lifeless. He described a world with no light. उसने describe किया है world को with no light, कि कोई रोशनी नहीं है, no movement, no nature and no joy. It is not a cheerful picture at all. It feels sad, cold and empty, just like a gloomy November day. ये बिल्कुल खुशगवार मंजर नहीं है, बल्कि ये उदास, सर्द और खाली महसूस होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि उदास नवंबर का दिन हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द पोएट हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर? Why? इसके आंसर में आपने लिखना है Yes, the poet has a good sense of humor because he uses exaggeration and clever wording to make the gloomy mood sound funny. जी हाँ, poet का sense of humor अच्छा है क्योंकि वो मुबालगा अदाई और क्लेवर वर्डिंग का इस्तेमाल करता है ताकि उदास माहौल को मज़ाहिया अंदाज में पेश किया जा सके. F क्वेश्चन है What impact is created by repetition of no throughout the poem? नज़म में what impact
क्या तासुब पैदा होता है? नो वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, इससे क्या इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होता है? क्या तासुब पैदा होता है? द रेपिटेशन ऑफ नो क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। खालीपन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को क्रिएट करता है। डलनेस एंड होपलेसनेस, सुस्ती को और नाउमीदी को। इट शोज हाउ एवरीथिंग इज मिसिंग एंड मेक्स द पोएम फील मोर पावरफुल एंड ड्रामेटिक। नो कवर्ड खालीपन, उदासी और नाउमीदी का गहरा एहसास पैदा करती है। अंडरस्टैंडिंग द पोएम में क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द टी अदर साइड द वे। द फ्रेज टी अदर साइड द वे मीन्स द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट or road. It shows that everything is so dark and unclear in November so that one cannot ever see across the road. Next question है, question number 2 का B part है, why do you think the phrase no go is put in inverted comma? जो word phrase में दिया गया है no go, इसको inverted comma में put किया गया है, while other, for example no mail, इसको inverted comma में नहीं लिखा गया. Is there any expression in inverted comma? तो इसके अबाउट आपने आंसर देना है. द फ्रेज नो गो is put in inverted comma because it is an informal or slang expression meaning nothing is moving or happening. There no progress or travel. The poet uses quotation mark to highlight its special or casual tone. आगे आपने आंसर लिखना है. Yes, there is one more expression, inverted commas. Both are in quotes to show they are colloquial. ब्रैकेट में आपने लिखना है informal expression. colloquial का मतलब है बोलचाल. different from the rest of the poem's formal tone. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the ring refer to? इसके आंसर में आपने लिखना है the ring refers to a circular road or park, especially Hyde Park's Rotten Row riding ring in London, where people used to walk, ride horses, or socialize. In the poem, no park, no ring means there is no outdoor social life or activity. Everything feels empty and lifeless. Next question है, comment on the phrase no afternoon gentility. The phrase no afternoon gentility means there is no polite or calm social life in the afternoon. It shows that the usual peaceful and pleasant activities are missing, making the scene feel dull and lifeless. Next part be working with words, यानी लफ्ज़ों के साथ काम करना, जिसका क्वेश्चन है find word in the poem which may be described in the following way. यहाँ पे कुछ sentences given है जो कि poem से लिए गए हैं. ये किस चीज़ को describe कर रहे हैं, आगे आपने इसका आंसर लिखना है. Okay, the star at the center of the solar system, आपने आंसर में लिखना है sun. The Earth's only natural satellite, आंसर में लिखना है moon. Appropriate और correct, proper. Next sentence है the first appearance of light in the sky as the sun rises at the beginning of the day. इसमें आपने लिखना है beginning of the day में dawn. Signs or signals, indications, well known, commonly seen or heard, easily recognized. आंसर में लिखे familiar. The perception that somebody has been seen before and is known, recognition. Next sentence है big idea or vision about a fact. वो feeling और thought जो बिल्कुल सच की तरह हो, हकीकत की तरह हो, about a fact, person or event. इसके आंसर में आपने लिखना है notion, contented and relaxed, ease, limb, member, an insect of the order Lepidoptera. आंसर में लिखें butterflies, heat, affection, friendliness, warmth. C part है learning about language, यानी ज़बान के बारे में सीखना. pronouns, जैसे कि pronouns आप जानते होंगे कि pronoun को उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है. इसमें ज़मीर का मतलब है, यानी pronoun का मतलब है जो noun की जगह जो word यूज़ होता है उस word को pronoun कहते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल है अली इज़ हंग्री, ही ईट मील. अब अली एक दफ़ा यूज़ हुआ है, अली की जगह जो वर्ड यूज़ हुआ है ही ईट मील, तो ही क्या है, वो प्रोनाउन है. इन बुक 6 यू लर्न अबाउट प्रोनाउंस. इस क्लास की बुक में आप प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं. क्या आपको याद है प्रोनाउन क्या है?
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक प्रोनाउन जो हिडन है और क्या आप उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसका आंसर मैं देती हूँ कि कौन सा प्रोनाउन जो है वो हिडन है। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ कुछ एग्जांपल गिवन है, साथ में यहाँ पे एक और चार्ट है। ये वाले वर्ड्स भी आप अच्छी तरह देख लें, कई दफ़ा पढ़ लें। ओके, पोएम पेज नंबर 14 खोलें। वैसे तो जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है जो वर्ड वो नो है यानी नवंबर है, लेकिन हम उसको प्रोनाउन की जगह यूज़ नहीं कर सकते। आप इस पोएम को अच्छे से पढ़ लें। जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड जो है एम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है डैम, नो कंट्रीज फॉर शोइंग देम, नो नोइंग देम, तो ये देम जो है प्रोनाउन की जगह यूज़ हुआ है। मोर क्लियरली एंड डायरेक्ट द प्रोनाउन देम इज हिडन, तो आपने आंसर में लिखना है मोर क्लियरली एंड डायरेक्टली द प्रोनाउन देम इज हिडन। ओके, जस्ट आप देम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27 पर क्वेश्चन है, कैन यू अरेंज द प्रोनाउन इन द लिस्ट ऑन पेज 16 into two column, one for singular and other for pronoun? The subject and object form of pronouns are often confused. Look at the following sentences को आप पढ़ें। He went to Rawalpindi. His father went to Rawalpindi. He and his father went to Rawalpindi. But we do not write in the following manner, him or his father went to Rawalpindi. We write they went to Rawalpindi. तो इसमें से ये वाला सेंटेंस जो है he and his father went to Rawalpindi, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। हिम एंड हिज फादर वेंट टू रावलपिंडी ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे शो हुआ है दे वेंट टू रावलपिंडी, तो ये सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन ज़्यादा सुटेबल जो है वो ये वाला सेंटेंस है ही एंड हिज फादर वेंट टू रावलपिंडी। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन गिवन है, अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड से वेदर दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स एंड वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल। इन क्वेश्चंस में कुछ पॉइंट्स गिवन है जिसमें ये बताना है कि प्रोनाउन कौन सा है और साथ में प्रोनाउन के साथ ये भी बताना है कि आया वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो प्लूरल है या सिंगुलर है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ शायद ना आए, जस्ट आप यहाँ से सेंटेंस रीड कर लें। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है दे वांटेड टू हेल्प द विलेजर, बाकी इसके मैंने नोट्स राइट डाउन किए हुए हैं, आपसे शेयर करूँगी। फर्स्ट सेंटेंस है दे वांटेड टू हेल्प द विलेजर, इसमें दे जो है, दे वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस में आसिम सैड ही वुड गिव देम सम वुड, इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है। नेक्स्ट सेंटेंस डेविड सिस्टर्स केम विद अस, इसमें देम जो है वो ऑब्जेक्ट है और ये प्लूरल है। फोर्थ सेंटेंस आप बुक से देख लें, अस ऑब्जेक्ट है और प्लूरल है। फिफ्थ सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, शी सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। सिक्स सेंटेंस में मी ऑब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है। आई सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। हिम ऑब्जेक्ट है और सिंगुलर है। शी सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। और लास्ट इन टेंथ सेंटेंस जो कि बुक में एच सेंटेंस है ये है, इसमें इट जो है वो सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को आप सुने एंड से देम अलाउड, और जोर से बोलें। बी केयरफुल टू स्ट्रेस द करेक्ट सिलेबल इन ईच वर्ड। लेकिन आपने इन ख्याल रखना है जब आप इन वर्ड्स को लाउडली पढ़ेंगे तो इसमें जो स्ट्रेस वाले वर्ड्स हैं उसको करेक्ट आपने प्रोनाउंस करना है। इन वर्ड में सेलेबल हैं उनको स्ट्रेस सेलेबल पर आपने जोर देना है, वो कौन से हैं आपने इनकी इंडिकेशन करनी है। कुछ वर्ड जो 1 सेलेबल वाले होते हैं, कुछ 2 सेलेबल वाले होते हैं, कुछ 3 सेलेबल वाले होते हैं। कौन सा सेलेबल जो है वो स्ट्रेस है, इसको आपने अंडरलाइन करना है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है, एक एग्जाम्पल भी यहाँ गिवन है, पर हैप्स, ये 2 सेलेबल वर्ड्स हैं लेकिन फर्स्ट वर्ड जो है वो स्ट्रेस नहीं है। हैप्स HAPS हैप्स ये स्ट्रेस है। और इनमें से भी आपने नोट करनी है कि कौन सा सेलेबल जो है वो स्ट्रेस है। इंडिकेशन CA स्ट्रेस है। रिकग्निशन NI स्ट्रेस है। फेमिलर MIN स्ट्रेस है। कंट्रीज कर्टिसाइसेस में COURT ये स्ट्रेस है। लोकोमोशन में MO स्ट्रेस है। नोशन NO स्ट्रेस है। चीरफुलनेस CHEER, चीर ऊपर मैंने लिखा भी है और नीचे अंडरलाइन भी की हुई है आप लोगों की आसानी के लिए, ये स्ट्रेस है। आफ्टरनून में NOON स्ट्रेस है। जेंटलिटी
जेंटेलिटी में LIT जो है वो स्ट्रेस है, नोबेलिटी LIT स्ट्रेस है, बटरफ्लाइज इसमें BUT स्ट्रेस है, और वर्ड नवंबर में VEM स्ट्रेस है। ये वाले 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप खुद कर सकते हैं। टेक केयर विद दीज वर्ड्स, से अलाउड ये वाले वर्ड्स जो हैं वो आपने लाउडली पढ़ने हैं, और फिर ये वाले जो वर्ड्स हैं और फिर इन वर्ड्स को भी आपने खुद ही रीड करना है। ये जस्ट आप खुद पढ़ेंगे तो तब आपको समझ आएगी। ई पार्ट है कंपोजिशन। पोएट हैज़ यूज्ड अ सिंपल आइडिया फॉर दिस। पोएट ने सिंपल सा आइडिया इस फॉर्म में यूज़ किया है। ही हैज़ थॉट ऑफ वर्ड नवंबर, taken the first syllable no, which also happened to be a word, and has written his poem theme. Can you do the same? इस poem में NO जो नवंबर वर्ड से syllable लिया गया है, no बार बार इस poem में यूज़ किया है। तो ये no क्या है? ये syllable है किस वर्ड का? नवंबर का। क्वेश्चन पूछा गया है क्या आप भी इसी तरह कर सकते हैं? तो इसी के अबाउट क्वेश्चन है, ट्राई टू राइट अ शॉर्ट पोएम ऑफ योर on any one of the following subject और another subject of your choice। यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है जिनके सेलेबल को अलग अलग किया गया है, जैसे कि tomorrow, invisible, yesterday, forgotten। अब ये हो गया to, in, yes और for। आसान से छोटे छोटे पोएम आपने बनाने हैं इन वर्ड के, जैसे tomorrow, invisible, forgotten और yesterday। इसके आपने छोटे छोटे से कोई पोएम बना लेनी है। आपकी आसानी के लिए मैंने इनके 3 टॉपिक्स के छोटे छोटे पोएम बना लिए हैं, जो कि मैं भी आपसे शेयर कर रही हूँ। टू द स्काई आई लेफ्ट माई आईज, यानी टू वर्ड जो है ये सेलेबल वर्ड है। ड्रीम लाइक स्टार्स बिगिन टू राइज, टू द डॉन विद होप आई गो, चेजिंग लाइट इन मॉर्निंग्स ग्लो। नेक्स्ट वर्ड है इनविजिबल। आपने कोई एक लिखना है, अच्छा, कि तीनों वर्ड्स के इसलिए पोएम बना लिए हैं। हर बच्चा एक पोएम ना लिखे, जब आप टीचर को चेक करवाएंगे तो सबका सेम ना हो। इनविजिबल का लिखें, इन द क्राउड येट ऑल अलोन, अ क्वाइट सोल सो रेयरली नोन, इन द लाइट बट नेवर सीन, लाइक विस्पर्स लॉस्ट इन स्पेसेस बिटवीन। ओके, आप यहाँ से नोट कर लें। और साथ में मैं आपको बताती चलूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती है। अगर ये वीडियो आपके काम आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप समझते हैं कि आपको ऐसी वीडियो की ज़रूरत बार बार पड़ेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, आपके लिए ढूंढना मुश्किल होगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो मुझे हिली एरिया से देख रहे हैं, उन बच्चों के पेपर प्लेन एरियाज़ के मुकाबले में जल्दी हो जाते हैं। तो वो बच्चे जो मुझे हिली एरिया से देख रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर 033251775053, इस नंबर पर मुझे अपने पेपर व्हाट्सएप करें, ताकि मैं प्लेन एरियाज़ के बच्चों के साथ इसी चैनल की तासत से आपके पेपर शेयर कर सकूं। चाहे आपके वो मिड टर्म के पेपर हैं, चाहे वो आपके फाइनल टर्म के पेपर हैं, तो मेरे साथ शेयर कीजिए। सिर्फ 7 क्लास की नहीं, बल्कि आपके बहन भाई या आपके ऐसे रिलेटिव जिनको आप जानते हैं, सब क्लासेस के पेपर अगर आपके पास मौजूद हैं या आपके एक्सेस में हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 ब्लैक ब्यूटी की फुल एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।